Hello students, very good morning. In this video session, we are going to learn the mole concept and its related terms. So in the previous video, actually we learn about the atomic mass, AMU, etc. But here we are going to discuss firstly about the molecular mass, and after then we will learn about the mole and mole concept. Okay, so let us start. तो यहाँ हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली होता क्या है? तो ये होता है किसी गिवन मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का सम। जैसे इट इज़ व्हाट द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक mass of each elements by the number of its atoms present in the molecules. That means in a given molecule, the sum of the atomic masses of the each and every elements and multiply by the its number of the atoms in the molecule. For example, it is CO2. So here we see that one carbon atom and two oxygen atoms are present. So its molecular mass is according to the mass of one carbon atom plus the mass of one oxygen atom multiplied with its number, that is 2. So the mass is what? Mass of one carbon atom, it is 12 mu, and the mass of one oxygen atom, it is 16 into 2, and so it is what? 44 mu. That means the mass of the one molecule of the CO2. Next, if we consider C6H12O6, now consider how many atoms and their combinations. So here 6 carbon atom, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atoms combine to form a molecule of glucose. It is what? It is glucose. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो इनके जो मासेस होंगे और इनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके जो प्रोडक्ट होंगे, इनका जो नेट सम आएगा, वो नेट सम जो होगा वो क्या होगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करें 6 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज 12 mu, 12 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम 1 mu, and 6 into mass of one oxygen atom, it is 16 mu, and their sum is, it is about 180 mu. So it is the mass of the molecule of the what? Glucose, that is molecular mass of the glucose. तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म आता है, दूसरा टर्म डिफाइन होता है ग्राम मॉलिक्यूल। तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूल हम लोग सीखेंगे। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? तो जब मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं इसके ग्राम में, दैट मीन्स व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, it is called gram molecule. Now remember that there is lots of difference between the molecular mass and the gram molecule or gram molecular mass, because for the molecular mass, when we expressed its mass in AMU, it means that it is the mass of one molecule, but when we expressed it in gram, that means its number, its mass is actually, it contains lots of number of molecules. And when we learn about the mole concept, then we correlate it with the Avogadro's number. जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे इसके एवोगाड्रोज नंबर से, और वहाँ हम लोग देखेंगे कि ये एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मासेस के इक्वल है इसका ग्राम मॉलिक्यूल मास। ओके, अब हम लोग कोरिलेशन देखते हैं
वन मॉलिक्यूल के मास में, यानी मास एक्सप्रेस्ड इन एमयू एंड ग्राम मॉलिक्यूल में रिलेशन देखते हैं। कैसे हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वी कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट is what 18 AMU. It means that it is mass of one molecule. Okay, now the gram molecular mass, that means here we expressed its gram molecular mass. It doesn't matter its mass of 1 gram, नेबर कंपेयर विथ इट्स मास ऑफ 1 ग्राम। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये इसका 1 ग्राम मास नहीं है, इट इज़ व्हाट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट 18 ग्राम, इट इज़ इक्वल्स टू 18 ग्राम एंड this the two are completely different. That means here it represents gram molecule mass. It means that इट इज़ अ नंबर नॉट द मास। ये एक नंबर बता रहा है जो कितना है, तो ये सिंगल है, दैट इज़ ग्राम मॉलिक्यूल मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ व्हाट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या हुआ, तो हम लोगों ने इस मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस कर दिया किसमें, ग्राम में। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, C6H12O6, ये हम लोगों ने ले लिया ग्लूकोज। तो अब यहाँ से देखें हम लोग, तो मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 180 MU, जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था। और हम लोग इसका देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। So its gram molecular mass is what 180 gram. It is what? It is the mass of one molecule of glucose. तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये दोनों के दोनों टर्म जो हैं डिफरेंट है, और ये ग्राम दोनों अलग अलग हैं। ये वेट को बता रहा है जिसका यूनिट ग्राम है, और ये उस नंबर को बता रहा है जिसका मास इतना होगा। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल, दैट मीन्स द मास विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो ये आपको दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। यहीं से अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं द मोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आप केयरफुली देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको सारी बातें एक बार में समझ में आएंगी, क्लियरली समझ में आएंगी। इसलिए आप इस पर फोकस कीजिए। व्हाट इज मोल? मोल, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज व्हाट? यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए ये जो है, ये हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसके यूनिट के लिए ऐसा यूनिट दिया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोल। अब देखिए इसको डिफाइन किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले प्रीवियस डेफिनेशन सीखेंगे। वो क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many particles your particles may be atoms, molecules, ions, anything, electrons, कुछ भी हो सकता है। as many particles as
present in 12 gram of C12 atom. That means the 12 gram of carbon contains as many particles as present in the substance mass, then it is known as mole. Okay, is called मोल. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये उसका मोल है. तो यहां से देखें तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली it is found that (12 gram of C12 contains 6.022 into 10 to the power 23. यानी कि ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है इसके पास इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. इट इज व्हाट, इट इज contains 6.022 into 10 to the power 23, and this number 6.022 into 10 to the power 23 is known as Avogadro's नंबर. ये सबसे पहले एवोगाद्रोज ने ही ये हाइपोथेसिस दिया था, इसीलिए इस नंबर को हम लोग एवोगाद्रोज नंबर बोलते हैं. इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NA से, कैपिटल N से या फिर N0 से. तो आप इनमें से किसी भी नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको ये रिप्रेजेंट करेगा व्हाट, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. तो ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है. आप उसका अगर 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा. लेकिन जो न्यू रिकमेंडेशन है 2018, यहाँ पे क्या किया गया, मोल का डेफिनेशन चेंज किया गया और नया मोल का डेफिनेशन आ गया. और उसने IUPAC ने क्या किया, इसको चेंज करके बोला कि अब आप इसको डिफाइन कीजिए. दी 1 मोल is the amount of substance which contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. That means now the new definition is also same, but here the correlation with carbon इज स्टॉप्ड. तो बस चेंज क्या किया गया कि कार्बन के साथ जो कोरिलेशन था उसको हटा दिया गया. अब सीधा है कि आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हैं, यानी कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ले रहे हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप इसे कंसिडर कर रहे हैं, आप इसको एज्यूम कर रहे हैं. ओके, अब आते हैं हम लोग रिलेशन देखते हैं AMU से और ग्राम से और मोल से क्या रिलेशन है. ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन. अभी हम लोगों ने देखा 12 ग्राम ऑफ C12 contains 6.022 into 10 to the power 23 number of particles, that is atoms. ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, फॉर्मेट चेंज करते हैं. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, the mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon 12 is equals to 12 gram. Now from the definition of MU, अब हम लोग MU का definition देखें तो वो क्या कहता है, 1 MU equals to 1/12 into mass of 1 C12 atom. तो अब यहाँ से इनका कोरिलेशन देखें तो हमें कोरिलेशन क्या मिलता है, 1/12 इंटू द मास ऑफ 1 एटम. तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ 12 ग्राम अपॉन एवोगाद्रोज नंबर. हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23.
तो अब हम लोग क्या करें, डिवाइड करें। तो ये मास ऑफ वन एटम का जो वैल्यू है दैट इज 12 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा और ये क्या जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1.66। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अब देखिए ये रिलेशन हो गया हमारा AMU से और किसके बीच, तो ग्राम से, यानी कि ग्राम और MU को हम लोग आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोरिलेशन देखें। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था या पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था एटॉमिक मास। ओके, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड व्हाट, ग्राम एटॉमिक मास। तो हम लोगों ने देखा, तो अब यहाँ से देखें 1 ग्राम एटम ऑफ C12, its mass is what, 12 gram, and from the definition of mole we found that the 12 gram of carbon contains how many particles? It is 6.022 into 10⁻23. That means the gram atomic mass of the atom or the molecule, that is gram atomic mass of the atom or gram molecular mass of the molecule are actually related with the number of moles. So 1 gram atom equals to 1 mole, 1 gram molecule equals to 1 molecule. तो ये आपस में एक्चुअली यहाँ से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मोल ऑफ C12। तो यहाँ से ये करेक्ट रिलेशन मिलता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि 1 ग्राम सोडियम एटम, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 23 ग्राम ऑफ सोडियम और इट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स एंड सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मोल। तो ये सारे के सारे जो हैं आपस में रिलेटेड हैं और ये रिलेशन क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के साथ मॉलिक्यूलर वेट से भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं 1 ग्राम molecule of H2O, it means that 18 gram and it is equals to what, 6.022 into 10⁻23 molecules of water and it is equals to 1 mole of H2O। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बेसिक रिलेशनशिप देखा वो क्या था, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ये जो नंबर है आप देख सकते हैं, जिसको हम लोगों ने कहा कि ये कौन सा नंबर है, अवोगाड्रोस नंबर है। तो ये नंबर जो है बेसिकली बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको सोच नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी ईयर्स it would be take to spend Avogadro's number of rupees at the rate of 10 lakh rupees पर सेकेंड। तो यहाँ से ये जो है हमारा कंसिक्वेंट रिलेशन आया कि हम लोग इतने अमाउंट को कितने टाइम में खर्च कर सकते हैं, यानी अवोगाड्रोस नंबर ऑफ रुपीज़ को खर्च करें अगर हम लोग पर सेकेंड 10 लाख रुपीज़ के रेट से, तो फिर ये कितने टाइम में ख़त्म होगा। तो यहाँ सिंपल रिलेशन है, रिलेशन क्या है, टाइम इक्वल्स टू
total amount upon amount spent in 1 second. Rather we have to find in years, so we will transform it into years. तो यहाँ से देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 23 अपॉन Avogadro's number of rupees upon 10 to the power 6 rupees per second. तो ये हमें देगा क्या, ये हमारा हो गया रुपीस। तो इससे जो वैल्यू आएगा ये हमें देगा 6.022 इंटू 10 to the power 6 है और यहाँ पे 23 है, अब डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, ये सेकेंड्स में आएगा। अब इसको ईयर में चेंज करना है तो ये हमें देगा नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 17। अब सेकेंड को हमें ईयर में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे आवर में चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग 3600, then we divide with 24, that means it is in 1 day, and then we divide with 365, that is it is in year, so it is equals to 1.9099 into 10 to the power 10 years। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने चाहिए। अगर अप्रॉक्सीमेटली माना जाए तो भी क्या होगा 2 into 10 to the power 10, that means 20 billions of years, about 20 billion। तो आप सोच सकते हैं कि आप पर सेकेंड 10 लाख रुपीस खर्च कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इतना रेट से भी खर्च करेंगे तो आपको कितने ईयर्स चाहिए, 20 बिलियंस ऑफ ईयर्स। आप सोच सकते हैं कि ये कितना टाइम है, तो इतना टाइम तो बहुत होता है और इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो नाउ यू मे कंपेयर दी 1 मोल दैट इज 6.022 इंटू 10 to the power 23 Avogadro's number, and this number is so huge, so large that you cannot imagine। ये इतना बड़ा है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अब खुद देखो, यहाँ हम लोग 1 सेकेंड में 10 to the power 6 10 लाख रुपीस खर्च करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 सेकेंड में 10 लाख रुपया खर्च कर दें। ठीक है, आप कर भी देते हैं तो भी आपके पास क्या, आप इतना टाइम तक रहेंगे 1.9 इंटू 10 to the power 10 ईयर्स। इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और अब आप कंसिडर कीजिए, आप इसको कोरिलेट कीजिए साइज ऑफ द एटम। आप सोच सकते हैं अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेंस 6.022 इंटू 10 पावर 23, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स हैं, तो 6.022 इंटू 10 पावर 23। इट मीन्स दैट इट इज़ सो स्मॉल यू कैन नॉट इमेजिन। तो एटम्स जो होते हैं इसीलिए बहुत 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 छोटे होते हैं, तभी तो हम लोग उनको मेज़र करने के लिए, उनके नंबर को काउंट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ किए। एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स में पहले जो था कंडीशन था कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि हम लोग क्या करें, एटम्स का एटॉमिक वेट फाइंड कर पाए। तो जब एटम्स का एटॉमिक वेट हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते थे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो इसके लिए एक कोरिलेशन फाइंड किया गया कि क्यों नहीं हम लोग एटम्स के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए उसके मास से रिलेट करते। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा बैग है और वो 1 रुपी कॉइन से भरा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, उसमें कितना अमाउंट ऑफ रुपीज़ है इसको कैलकुलेट करना है। तो आप लेकर के अब उसको काउंट करना शुरू कीजिए। इट्स टेक वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम, वेरी लार्ज टाइम। सो there is very easy method. First weight the total amount of the what, the coins। जितने अमाउंट हैं कॉइन्स का उनको वेट कर लीजिए, उनका मास फाइंड कर लीजिए
और तब क्या कीजिए, एक कॉइन का मास फाइंड करके उसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में भी यही किया गया। क्या किया गया कि एक रिलेशन फाइंड कर दिया गया मास और नंबर में, जिसके थ्रू हम लोग आसानी से एटम्स के नंबर को कैलकुलेट कर सके, उसके मास से रिलेशन फाइंड कर सके, और इसीलिए ये टर्म आया मोल्स। लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसके थ्रू आसानी से हम लोग कितना भी छोटा एटम है, कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग आसानी से उसका वेट क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।